Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Once again, we're happy to be with you. और फिर से एक बार बहुत खुशी की बात है कि हम आपके सामने हैं. And the topic today that I would like to bring to you is walk with God. और जो मेरा विषय आज का है वो परमेश्वर के साथ चलना. It was Henry Ford who said something like this. और हेनरी फोर्ड ने ये कहा, Those who walk with God जो परमेश्वर के साथ चलते हैं always reach their destination. वो हमेशा अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं. And this walking is not new to all of us. और ये चलना हमारे लिए कोई नई बात नहीं है. When a child grows to be 1 or 2 years of age and he starts walking, what joy! The parents are filled with joy. और जब एक बच्चा 1 या 2 साल का होता है और चलना शुरू करता है तो उसके माता पिता कितने खुश होते हैं. And they say, my child can walk now. और वो कहते हैं मेरा बच्चा अभी चलने लगा. Even for healthy living, we see that walk is so necessary. Walking is called the queen of exercises. और स्वस्थ जीवन के लिए चलना बहुत ही आवश्यक है. और कहा जाता है कि चलना व्यायाम की रानी है. And all over the world we see people going for morning walks, going for evening walks. और हम देखते हैं विश्व भर में लोग सुबह के समय चलने और टहलने निकलते हैं, शाम के समय वो टहलते हैं. Even in the gardens you see, or in the roads you see in the morning, early mornings, people are walking. और हम देखते हैं गार्डन्स या उद्यानों में कि लोग वहां पर चलते हैं, रोड पर लोग चलते हैं. And so this also applies in our spiritual life. और ये हमारे धार्मिक जीवन में भी लागू कर सकते Now हैं. what the Bible says about walk with God. और बाइबल हमें क्या बताती है परमेश्वर के साथ चलने के बारे में. If you go to the Bible to read 1 John chapter 2 verse 6, the Bible says, he who says that he abides in him, that means in God, ought himself also to walk just as he walked. और पहला यूहन्ना 2:6 में यूं लिखा है, जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वो चलता था. Jesus said that if you abide in me and I abide in you. यीशु मसीह कहते हैं, जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता है. And so this even later we see that Psalm 37 verse 23, that the steps of a good man, step means when you're walking, the steps of a good man are ordered by the Lord and he delights in his way. और भजन संहिता 37:23 में लिखा है, मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है. Now walk requires certain conditions, and what I have pointed out here are 3 major things. The walk requires obedience, the walk requires faithfulness, and walk requires righteousness. और जब हम परमेश्वर में चलते हैं तो 3 बातों का ख्याल हमें करना बहुत जरूरी है. आज्ञाकारिता, विश्वास योग्यता और धार्मिकता. And we see examples in the Bible of so many people who walked with God. और हम कई उदाहरण बाइबल में देखते हैं वे लोगों का जो परमेश्वर के साथ चले हैं. Right from Abel and then Enoch, Abraham. और हम देखते हैं हानोक, अब्राहम और आदम परमेश्वर के साथ चलते थे. And then we see Jacob, Joseph and Moses. और हम ये देखते हैं याकूब और यूसुफ और मूसा भी परमेश्वर के साथ चलते थे. We see how they were called friends of God. और हम ये देखते हैं कि वो परमेश्वर के मित्र कहलाए गए. And how God would speak to Moses as a man to man. और कैसा परमेश्वर मूसा से बातें करता था जैसा एक दोस्त अपने दूसरे मित्र के साथ बात करता है. Remember, when we walk with the Lord, there is a great promise attached to it. और याद रखिए जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो उसके साथ एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा भी हमारे साथ जुड़ी है. In Proverbs chapter 10 verse 22. और ये हमें मिलता है नीति वचन
उसका 10:22 में, The blessing of the Lord makes one rich and he adds no sorrow with it. और लिखा है धन यहोवा की आशीष है, आशीष ही से मिलता है, और जो उस पर चलते हैं उनके साथ दुख नहीं मिला रहता है। Now where did this walking started? Where did it arise from? और ये चलना कब से शुरू हुआ? It was in the Garden of Eden. और हम देखते हैं अदन की वाटिका में ये चलना शुरू When हुआ। God came walking in the garden in the cool of the day. और जब परमेश्वर यहोवा उस वाटिका में घूमने निकलता था ठंडे समय, और दिन की उस वायु में उस वाटिका में फिरता था। This we read in Genesis chapter 3 verse 8. और ये हम पाते हैं उत्पत्ति की किताब 3 और 8 में। The purpose of creating man for God was to have friendship with man and fellowship with man. और परमेश्वर ने इंसान को इसीलिए रचा कि वो चाहता था कि उसके साथ वो मित्रता करे और उसके साथ वो संगति रखे। But because of sin, man hid himself. लेकिन पाप के कारण इंसान अपने आप को छिपा लिया। And so God longs to walk with you. And that is why by grace he pulls you. और परमेश्वर की बहुत इच्छा है कि वो हमारे साथ चले, और इसीलिए उसका अनुग्रह हमें उसकी तरफ खींचता For है a closer walk with him. ताकि हम उसके साथ बहुत करीबी से रिश्ता रखें। We can take an example of husband and wife. हमें ये उदाहरण एक पति पत्नी का ले सकते हैं। From the time they get up in the morning, और जब से वो सुबह उठते हैं, and if they do not relate to each other, then something is wrong. और अगर वो आपस में वार्तालाप नहीं करते तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। We keep on interacting with each other, talking, making phone call if somebody goes out for some work. और हम एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, बातें करते हैं, और हम एक दूसरे के जीवन से मतलब रखते हैं। जब कोई बाहर जाता है तो हम उसके बारे में खबर रखते There is हैं। ongoing communication to keep this relationship alive. और ये निरंतर का एक आपसी संबंध रहता है जो उनके जीवन में चलता रहता है। And this same thing, similar way, God requires that we may have constant fellowship. That we may have constant fellowship with Him. और इस तरीके से परमेश्वर भी चाहता है कि हम निरंतर उसके साथ संगति करते रहें। And that we, when we are with Him, we may enjoy each other. और जब हम उसके साथ रहते हैं तो हम उसका पूरा आनंद उठाए और उसके साथ रहकर हम हर्षित हो। And when we walk with the Lord, He opens the scriptures. He gives us wisdom, the spirit of wisdom and revelation. और जब हम उसके साथ चलते हैं तो वो अपने वचन को हमारे सामने खोलता है और हमें बुद्धिमानी की आत्मा और हमें प्रकाशन की आत्मा देता है। By the power of His Holy Spirit. और उसके पवित्र आत्मा के जरिए He puts the word in our heart. उसके वचन को हमारे हृदय में रखता What है। we need to do in a particular day. और हमें क्या करना चाहिए उस दिन में। And therefore, God commends a person who walks with Him. और इसीलिए वो ऐसे व्यक्ति को उठाता है, सराहता है जो चाहता है कि उसके साथ वो चले। And we see in the Bible about Micah, and Micah 6:8 says, He has shown you, O man, what is good and what the Lord requires of you, to do justice, to love mercy, and to walk humbly with your God. और हम बाइबल में पढ़ते हैं मीका 6:8 में ऐसे लिखा है, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। And so the Bible says that what does the Lord require of you? और बाइबल हमसे ये कहती है कि परमेश्वर हमसे और क्या चाहता है। To walk humbly with your God. कि हम परमेश्वर के साथ बहुत ही नम्रता से चलें। When we are walking with the Lord, our whole being, our nature becomes a humble nature.
जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो हम पूर्ण तरीके से नम्र हो जाते हैं. Also we see the Bible says in Hebrews chapter 11 verse 5 that by faith Enoch was taken away so that he did not see death and was not found because God had taken him. For before he was taken he had this testimony that he pleased God. और हम इब्रानी 11:5 में ये पढ़ते हैं कि विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था. और उसके उठाए जाने के पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है. The testimony of Enoch was that he pleased God. और हनोक की ये गवाही थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था. And because he had faith in God, he walked all those many years. और क्योंकि उसके पास विश्वास था इसलिए इतने साल वो परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता से चला. In Hebrews chapter 11 verse 6, the Bible says, but without faith it is impossible to please God or please him. For he who comes to God must believe that he is, and he is the rewarder of those who diligently seek him. और इब्रानी 11:6 में लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है. I want to narrate a story or a incident that happened in Mark chapter 2 regarding 4 friends who brought their paralytic friend before Jesus. और मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताना चाहता हूँ जो कि सच की घटना है, और ये हमें मिलता है मरकुस उसका 2 अध्याय 1 से 5. These 4 friends, they used to love their other friend who was a paralytic patient, and they wanted to bring this paralytic man before Jesus. और 4 मित्रों ने अपने एक मित्र को यीशु मसीह के पास वे लाए, और वो जो व्यक्ति था वो बीमार था, लकवे का रोगी था, और चाहते थे कि वो यीशु मसीह उसे चंगा करे. House was full of people. लेकिन कमरा पूरा भरा हुआ था लोगों से. There was no place to come right from the door. और कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ से वो यीशु मसीह के पास पहुँच सके. So they went up on the roof and they removed a part of the roof and lowered the bed with the patient on it down before Jesus. और इसीलिए वे सब छत पर चढ़ गए अपने मित्र को लेकर, और फिर छत को कुछ तोड़ा, और वहां से उन्होंने वो खाट को नीचे जहां यीशु बैठा था वहां पर उन्होंने नीचे करी. When Jesus saw the faith of these 4 friends, और जब यीशु मसीह ने ये 4 मित्रों के विश्वास को देखा, it pleased him. और वो खुश हुआ. And he said in Mark 2 verse 5, when Jesus saw their faith, he said to the paralytic, son, your sins are forgiven you, be healed. और यीशु ने जब उनके विश्वास को देखा तो उसने कहा, उस लकवे के रोगी को कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए. What about our faith? हमारे विश्वास का क्या? Can the people around us, the people with whom we live, the neighbors around us, can they say that can they give a proof of our faith? क्या हमारे विश्वास को देखकर जो लोग हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, हमारे पड़ोसी या हमारे सगे संबंधी, क्या वो हमारे विश्वास को देखकर ये देख सकते हैं कि हम विश्वासी हैं? When we pass through difficult times, when there is no help available, can we say, let us put our trust and faith in God? क्या हम उस समय जब हमारे पास कुछ नहीं है और जब हम दुख मुसीबत तकलीफ में से जा रहे हैं, क्या हम उस समय कह सकते हैं कि हम अपने परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? We are all passing through difficult times right now. और हम सभी बहुत ही कठिन समय से पार लगा रहे हैं. Many people are experiencing various difficulties in life. और बहुत तेरे लोग ऐसे हैं जो कि अपने जीवन में बहुत दुख मुसीबत और तकलीफ से गुजर रहे हैं. Can we say to them, have faith in God? क्या हम उनसे कह सकते हैं कि परमेश्वर पे विश्वास करो? Remember, the Bible says in Romans chapter 8 verse 17 that it is by faith
that we are called the heirs of Christ, heirs of God. और रोमियो 8:17 में लिखा है कि विश्वास ही से हम परमेश्वर की संतान और ना केवल संतान, हम उसके वारिस भी कहलाए जाते हैं. If we indeed suffer with him, we will also be glorified with him together. और इसीलिए कि जब हम उसके साथ जब दुख उठाते हैं तो उसके साथ महिमा भी हम पाएंगे. Remember, it is your walk with God and your faith that will help you to become overcomer. और इसीलिए हम ये देखते हैं कि हमारा जो चाल है परमेश्वर के साथ और हमारा जो विश्वास है वो हमें पार लगाने में मदद करेगा. Your faith will help you to see your day as a miracle day every day. आपका विश्वास आपको हेल्प करेगा कि आप अपने दिन को एक चमत्कारिक रूप में देख सकते हैं. Your faith will heal you of your sickness and your disease. आपका विश्वास आपको आपकी बीमारियों से चंगा करेगा और हर रोग से पार लगाएगा. Because we walk by faith and not by sight. क्योंकि हम विश्वास से चलते हैं और हम अपनी दृष्टि से नहीं चलते. When you walk with God, even the enemy, the devil, will be afraid of you. जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो हमारा जो बैरी है वो हमसे डरेगा कि हम परमेश्वर से डरते हैं. To walk with God, we must have no distraction. We should be walking without distractions. जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो हमको ऐसे चलना चाहिए कि हम गुमराह ना हो, हम व्याकुलता में ना जिए. Imagine you walking with a friend who has a mobile phone. आप सोचिए कि आप एक ऐसे मित्र के साथ चल रहे हैं जिसके पास एक मोबाइल फोन है. And while you're walking together, this friend is busy in his mobile phone and he's not talking to you. और जब आप चल रहे हैं तो ये आपका मित्र है अपने मोबाइल पर बहुत ही व्यस्त है. And so you will say that your walk with your friend has not been enjoyable. और जब आप उसके साथ चल रहे हैं तो वो आपसे बातें भी नहीं कर रहा है तो आपको बहुत बुरा लगेगा. And this will mean also that your walk together was not meaningful. और ये भी आप कह सकते हैं कि जब आप इस मित्र के साथ आप चल रहे थे तो आपका जो साथ था वो बहुत आपको लाभदायक नहीं था. Yeah, see, this life is full of distractions. और इसीलिए हम देखते हैं कि बहुत सारे जीवन में बहुत सारे गुमराह करने वाली चीज हमारे सामने Life is आ जाती है. full of fantasies. और हमारा जीवन बहुत ही कल्पनाओं में बीतता जाता है. And media is one of the things that most provide greatest distractions come from the media. और जो मीडिया है बहुत ज्यादा गुमराह करने में कार्य करती है. Every day we face through internet, through movies, through TV. हम रोजाना मीडिया का सामना करते हैं इंटरनेट के जरिए, पिक्चर देखने के जरिए और बहुत सारी चीजों के और टीवी के जरिए, म्यूजिक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए और मैसेजेस हमको आते रहते हैं. And so the key is to be wise. और जो कुंजी है कि हमको बुद्धिमानी से चलना है. That what we must watch, what we must read, how much time we should spend with it. और हमें बुद्धिमानी से निर्णय लेना है कि हमको कहाँ पर अपने समय को ज्यादा बिताना है, किसके साथ हमें ज्यादा रहना है और कैसा जीवन बिताना है. Is it distracting me from my walk with the Lord? क्या ये सारी चीजें हमें गुमराह कर रहा है हमारे परमेश्वर के साथ चलने से? A lot of young people and elderly people also spend hours together on mobile phone, maybe chatting, maybe talking or spending time aimlessly. और बहुत सारे जवान आप कह लो या बुजुर्ग कह लो, आजकल बहुत सारे जवान अपने मोबाइल पर समय बिताते हैं और एक दूसरे से चैट करते रहते हैं और अपने समय को यूं ही गवा देते हैं. So anything that is demanding most of our time, takes away most of our time, will bring our walk with God spiraling down. It will bring it down. और जो कोई चीज हमको ये सारी चीजें जो परमेश्वर के साथ रहने से रोकता है या हमको परमेश्वर से दूर ले जाता है, तो ये सारी चीजों के साथ हम परमेश्वर
के साथ उतना समय नहीं बिता पाते। Walk with God requires a certain discipline in life. और परमेश्वर के साथ चलना कुछ नियंत्रण का को चाहता है हमारे जीवन में। Yeah, and see the life of Daniel. You know, he had discipline. 3 times he will come and open the window towards Jerusalem, and he would pray 3 times a day. और हम दानियल के विषय में पढ़ते हैं कि किस तरीके से उसका जीवन नियंत्रित था और 3 बार वो दिन में प्रार्थना करता था परमेश्वर से। We will never be satisfied if we do not have discipline in walking with the Lord. हम कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे जब तक हम परमेश्वर के साथ नियंत्रित रूप से नहीं चलेंगे। And the last distraction is we ourselves. और कई बार हम अपने आप के वजह से गुमराह हो जाते हैं। Since we carry a sinful nature inside of us, क्योंकि हमारे अंदर एक पाप का जीवन होता है और हम ऐसे स्वभाव के साथ चलते हैं जो पापी स्वभाव है। Even Paul in Romans chapter 7 verse 15 to 21, he talks about the sin that is inside of him. और हम देखते हैं इवन पौलुस अपने बारे में रोमियो उसके 8वें अध्याय में Romans 7 रोमियो 7 और 15 to 21 15 से लेकर 21 तक वो अपने आप के बारे में कहता है। There is no desire for us to get close to God. और वो कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर इच्छा ही नहीं होती है कि हम परमेश्वर के करीब हो। There is a constant battle within ourselves between the spirit and the flesh. और हमेशा हमारे अंदर एक लड़ाई चलती रहती है हमारी आत्मा में और हमारे शरीर में। The good I want to do, I do not do. और पौलुस भी ये कहता है कि जो अच्छा चीज मैं करना चाहता हूँ मैं नहीं करता हूँ। And the bad that I do not want to do, I do that only. और जो गलत चीज मैं नहीं करना चाहता हूँ मैं देखता हूँ वही मैं करता हूँ। So there is a constant battle between our spirit and between our flesh. और वैसे ही हम देखते हैं कि हमारे जीवन में भी एक निरंतर लड़ाई चलती रहती है हमारी आत्मा में और हमारे शरीर में। We need to search our hearts. हमको अपने हृदय को खोजना है। And like David, he prayed something in Psalm 139 verse 23 and 24. और जैसे दाऊद भजन संहिता 139 उसके 139 में 23-24 दाऊद कहता है 24 और 25 में, He says, "Oh God, purify my heart." और वो कहता है हे परमेश्वर मेरे हृदय को पवित्र बना। Even to the church in Galatians, Paul writes in Galatians chapter 5 verse 16. और गलतियों की कलीसिया को भी पौलुस ये लिखता है, He said, "I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh." और वो अपनी कलीसिया को कहता है कि पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चले तो तुम शरीर के लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। While we were in Delhi, we were invited for a talk by a former astronaut named Charlie Duke. जब हम दिल्ली में थे तो चार्ली ड्यूक जो एस्ट्रोनॉट थे उनकी मीटिंग थी और हमें आमंत्रित किया गया था। He was famous because he was the man who went to the moon in Apollo 16 mission on 16 March 1972. और वो बहुत ही प्रसिद्ध इंसान थे क्योंकि वे अपोलो 16 में वो एक यात्रा किए थे चंद्रमा पर। He walked on the moon and he even drove a car on the moon. और वहां पर वे चंद्रमा पर चले थे और कार भी उन्होंने चलाई थी चंद्रमा पर। He spoke at the meeting something very important. और वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज उस मीटिंग में कह रहे थे। He said walking on the moon was only for 3 days. और वो कह रहे थे कि हम सिर्फ 3 दिन चंद्रमा पर थे और वहां पर चले फिरे। But walking with Jesus is forever and forever. लेकिन वो कह रहे थे कि लेकिन परमेश्वर के साथ जो हम जब चलते हैं तो वो हमेशा हमेशा का चाल होता है, हमेशा हमेशा का चलना होता है। He was married to Dorothy, his wife, and he had 2 sons. और उनकी पत्नी का नाम डॉर्थी था और उनके पास 2 बेटे थे। But when he was 36 years of age, his marriage was on the rocks. It was about to break. और जब वो 36 वर्ष के थे तो उनकी शादी बहुत ही परेशानी हालत में थी, टूटने
टूटने वाली थी. He was like on the brink of getting divorced because things were not going all right in his house. और वो बिल्कुल ऐसे स्थिति में थे कि अभी वो अलग होने वाले थे अपनी पत्नी से. Because they did not know how to walk with the Lord. क्योंकि वो नहीं जानते थे कि किस तरीके से परमेश्वर के साथ चलना चाहिए. दोनों को नहीं पता था कि किस तरीके से परमेश्वर के साथ चलना चाहिए. Until they went to church one day, one time for a special meeting. और इस परिस्थिति में वो एक कलीसिया जाते हैं एक मीटिंग के लिए. And his wife in that meeting, she gives her heart to Jesus. और वो मीटिंग में, वो सभा में उनकी पत्नी अपने हृदय को यीशु मसीह को देती है. Charlie notices a change in his wife. और चार्ली ने अपनी पत्नी में एक बदलाव को देखा. From a sadness, she becomes a person of joy. और वो दुखी रहती थी, लेकिन जब उसने यीशु मसीह को ग्रहण किया तो वो बहुत खुश रहने लगी. She has a spirit of forgiveness. और उसके अंदर एक क्षमा करने की आत्मा दिखने लगी. She will not crib every time or go after somebody every time. और वो कभी अभी बुड़बड़ाती नहीं थी कोई चीज के लिए और गुमराह नहीं होती थी. He saw a spirit of love in her. और उसने उसके अंदर प्रेम का स्वभाव देखा. And a spirit of calmness and peace. और एक बड़े शांति का और एक बड़े नियंत्रित स्वभाव को उसने उनकी पत्नी में देखा. It was after 2.5 years that he also gave his life to Jesus. और फिर 2.5 साल बाद उसने अपने जीवन को भी यीशु मसीह को दिया. And he started his walk with the Lord. और वो परमेश्वर के साथ चलने लगे. He started reading his Bible. और वो अपनी बाइबल को पढ़ने लगे. And the Holy Spirit convicted him of his sins. और पवित्र आत्मा ने भी उनको अपने पाप के विषय में कायल किया. God delivered him from anger. परमेश्वर ने उन्हें गुस्से से मुक्त किया. God delivered him from all the wrong things that was in his life. और परमेश्वर ने उन्हें सब गलत बातों से मुक्त किया जो उनके जीवन में था. And so he shared his moonwalking experience with all the people around the world. और ये जो उनका अनुभव था, जो चंद्रमा पर वो चले, वो सब लोगों को वो जाकर बताते थे. To glorify God. और इसीलिए बताते थे कि वो चाहते थे कि परमेश्वर की महिमा हो. In every opportunity that he got. और हर एक समय जब उनको ये समय मिलता था, वो अपनी टेस्टिमनी को शेयर करते थे. People were excited to meet a man who went to the moon, who walked on the moon. They wanted to see a man who walked on the moon. और जब लोगों को पता चलता था तो वो बहुत ही उत्साहित होते थे कि हम ऐसे व्यक्ति से मिलें जरूर जो कि चंद्रमा पर चले. But his mission was to introduce the perfect man, the Lord Jesus Christ. लेकिन उनका एक उद्देश्य था कि वो लोगों को ऐसे व्यक्ति से मुलाकात करवाए जिनका नाम यीशु मसीह था. Who came from heaven and walked on the face of this earth. जो आसमान से जमीन पर उतरा और वो इस दुनिया में चला. Yes, my dear friends. और हाँ मेरे प्रिय मित्रों, God so loved the world that he gave his only son from heaven to come and walk on the roads of this world. और परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र आसमान से भेज दिया कि वो हम जैसे इंसानों के साथ चले फिरे. That our sins may be forgiven. और हमारे पाप भी क्षमा हो. He died on the cross. वो उस क्रूस पर and paid a ransom. Paid a ransom for you and me. और उसने हमारे लिए वो कीमत चुकाई मेरे और आपके लिए. You can know this Jesus today. और हमको ये यीशु मसीह को जानना जरूरी है. Begin your walk with him. और जब हम उसे जाने तो आज हम उसके साथ चलना शुरू करें. In John chapter 15 verse 15, the Bible says that Jesus says that no longer I call you servants, but I call you my friends. और यीशु मसीह यूहन्ना 15:15 में कहते हैं, अब मैं तुम्हें दास न कहूंगा क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है. God wants us like friends. He wants to make us his friend. परमेश्वर चाहता है कि वो हमें उसका मित्र बनाए. Let this prayer be today. Lord, I want to talk to you.
ये प्रार्थना हमारी हो कि हे परमेश्वर, मैं तुझसे बात करना चाहता I हूँ, want to walk with you. मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ, I want to listen to you. मैं तुझे सुनना चाहता हूँ. Teach me, Lord, to walk with you. मुझे सिखा परमेश्वर कि मैं तेरे साथ चल I सकूं. want to be your friend. मैं तेरा मित्र बनना चाहता हूँ. Give me the qualities of humility, और मेरे पास वो आदतें दे जो नम्रता की है, faithfulness, और विश्वास योग्यता की, and loyalty to you. और ताकि मैं तेरे साथ निष्ठा पूर्व चलता रहूं. When you walk with the Lord, then surely this promise of Deuteronomy chapter 5:33 will become true for you. और जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं तो तब आप ये स्वभाव बताते हैं जो कि पूरा होता है, जैसे व्यवस्था विवरण उसका 5 और 33 में लिखा है. The Bible says in Deuteronomy 5:33, you shall walk in all the ways which the Lord your God has commanded you, that you may live and that it may be well with you, and that you may prolong your days in the land which you shall possess. और व्यवस्था विवरण 5:33 में लिखा है, जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, उस मार्ग पर चलते रहो कि तुम जीवित रहो और तुम्हारा भला हो, और जिस देश के तुम अधिकारी होंगे उसमें तुम बहुत दिनों के लिए बने रहो. There's a famous song which goes, just a closer walk with thee. और एक बहुत सुंदर गीत है जिसके बोल है, just a closer walk with thee. And I'm sure when you sing that song, it will make you aware that how important it is to walk with the Lord. और जैसे ये गीत गाते हैं और ये गीत होता है तो आप अपने आप में ये चीज का एहसास करिए कि कितना महत्वपूर्ण है कि हम उसके साथ चलें और उसके साथ अपने दिन को बिताएं. Shall we just sing this song? क्या हम ये गीत गाएं? I am weak but thou art strong. Jesus, keep me from all wrong. I'll be satisfied as long as I walk. Let me walk close to thee. Just a closer walk with thee. Granted, Jesus is my plea. Daily walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be. Shall we look to God in prayer? क्या हम परमेश्वर की ओर देखें Lord, प्रार्थना our में? gracious Heavenly Father, प्रिय स्वर्गीय पिता, thank you for this message that we could hear this day. परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ आज के इस वचन को जो हम सब सुन सके. Give us the courage and strength to walk with you every day, Lord. हमें वो सामर्थ और हियाव दे कि हम तेरे साथ रोज बरोज चलने पाए. And even as the song goes, that when my feeble life is over, जैसे ये गीत वाला कहता है कि जब मेरा ये समय खत्म हो जाता है इस time दुनिया for में me will be no more. और मेरे पास और कोई समय बाकी नहीं रहता, Guide me gently, safely over. मुझे ले चल उस पार, नदी के उस पार, To thy kingdom shore. जहाँ To thy पर kingdom shore. जहाँ पर तेरा राज है, जहाँ पर वो तट है जहाँ पर मैं आऊं जो तेरे राज का है. Yes, Father, I pray for every person who's listening to this message. परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ हर एक व्यक्ति के लिए जो ये संदेश को सुन रहे हैं. May we not be distracted by the things of the world. प्रभु होने दे ताकि हम इस दुनिया के कोलाहल को देखकर हम इधर उधर ना May we भटके. not be distracted by this COVID-19 virus. प्रभु होने दे ताकि हम गुमराह ना हो ये कोविड-19 के इस महामारी को देखकर. Let our walk be like Enoch's walk. हमारा चाल प्रभु वो हनोक के समान हो, That we may walk with you, Lord, into eternity. ताकि हम चलते रहें और हम तेरे अनंत काल में प्रवेश करें. We commit all the people into mighty hands.
परमेश्वर मैं सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ। Those who are celebrating their birthdays and the anniversaries, Lord, we pray for them. Bless them richly. जो अपने जन्मदिन और शादी की सालगिरह को मना रहे हो उनको बहुत आयत से आशीषित कर। Those who give for your work, Lord, bless their money, bless their pockets. और जो देते हैं तेरे कार्य के लिए उनके हर धन को तू आशीषित कर। Those who are sick and suffering, Lord, relieve them and heal them. Deliver them, Lord, from every suffering. और जो बीमार है और जो रोग में पड़े हैं परमेश्वर उन्हें आजादी दे और चंगाई दे ताकि वो छुटकारा पाए। We pray this prayer in the name of Jesus. हम ये प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। And now may the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you. And the Lord be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे आशीष दे। Amen. Praise the Lord.